Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back. Business Economics ECU 400 के लेक्चर नंबर 28 में खुश आमदीद. पहले की तरह we'll try to revise the previous lecture for a few minutes and then we'll proceed for the today's lecture. तो अगर आपको याद होगा what we have learned in the previous lecture, we studied about the poverty situation in Pakistan and the measures which government has taken to reduce poverty in Pakistan. So that was the scope or the topic of discussion for the previous lecture. So we start revising that lecture. We have learned that as growth accelerated in the economy, unemployment and poverty have declined, right? So we have seen that there is a direct relationship between poverty, there is an inverse relationship between poverty and poverty reduction and growth. अगर किसी मुल्क में growth हो रही होती है, GDP बढ़ रही होती है, it means production बढ़ रही है, income लोगों की बढ़ती है और poverty कम होती है. So as growth accelerated in the economy of Pakistan, unemployment and poverty have declined. So as we have seen that in the previous lecture, over 13 million people were brought out of poverty during 2001 and 8. तो पिछले जैसा कि हमने देखा 7 सालों में almost 13 million लोगों को नौकरियां they were brought out of poverty and 13.5 million jobs were created in 7 years. So this is how the growth, acceleration and growth reduced poverty and unemployment from the economy. So we have also seen that unemployment rate declined from 8.3% in 2001 to 5.2% in 2007 and 8. As we know that जब लोगों की इनकम बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, गुर्बत में कमी वाक़ई होती है, तो लिविंग कंडीशन क्या होती है लोगों की? लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल हैव आल्सो इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन पाकिस्तान. एक और चीज़ की हमने बात की थी कि inequality increased only marginally during 2001 and 2006 but declined in 2007 and 8. थोड़ा सा इजाफा हुआ था इनक्वालिटी में जो कि 2001 और 2006 में, but it was later on declined in 2007 and 8. When we compare the unequal states or unequal countries of the world, so we found that Pakistan is one of the least unequal countries in the world. So after all that discussions, what we concluded in the previous lecture, we said that consistency and continuity in policies will sustain economic growth and further reduce poverty. So we said that if there is consistency in government policies and continuity in government policies, so this will further promote economic growth in the country and further reduces poverty in the economy. So we have learned about the poverty in the previous 2 lectures, and we have seen that what is the state of affairs about poverty in Pakistan and 7 or 8 years, recent years. So this was the overall previous lecture. Now we'll come to today's lecture, what we are going to learn today's lecture. So this lecture basically is about 5 debates over macroeconomic policies. You know, macroeconomic is very, very important for an economy. As we know that there are a lot of parameters which we discuss, we talk about under macroeconomics, like employment, unemployment, fiscal policy, monetary policy. We talk about inflation, we talk about poverty, we talk about balance of payment, we talk about balance of trade, capital account की बात करते हैं. So these all are the scope of macroeconomics. So
in economics, always there is a debate among economists about 5 different issues, whether some economists are in favor of those policies, some are in against those policies. So this is the scope of today's lecture. So what we are going to learn today, first debate is, should monetary and fiscal policy makers try to stabilize the economy? This is the first debate under macroeconomics policy. Second, should monetary policy be made by rule rather than by discretion? Should the central bank aim for zero inflation or not? Then we'll talk about, should the government balance its budget? Very, very important debate. Then, should tax laws be reformed to encourage saving? So these are the 5 macroeconomic policy debates. So we would like to see that what are the advantages, what are the pros and cons of each of the debate, each of the policy under macroeconomics. तो इन 5 पे हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, एंड दिस वुड बी द स्कोप ऑफ टुडेज लेक्चर. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि शुड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी मेकर ट्राई टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी. तो इसकी बात करते हैं, इसके प्रोज देखते हैं, व्हाट आर इट्स प्रोज, एंड देन विल सी व्हाट आर इट्स कॉन्स. सो विल सी इट्स बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, advantages and disadvantages, pros and cons की बात करेंगे in each policy debate. So we start with the first debate, which is, should monetary and fiscal policy makers try to stabilize the economy? Whether or not we need monetary policy, as we have seen that there are short-term economic fluctuations as well as long-term fluctuations in the economy. Now in this basically debate, we will see that whether the policymaker of the country should use monetary and fiscal policy to stabilize the economy, or to eliminate those economic fluctuations which happen due to increase or decrease in aggregate demand, or the difference in aggregate demand and aggregate supply in the economy. So question ये है, सवाल ये है कि क्या पॉलिसी मेकर्स को मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कि नहीं करनी चाहिए. तो इसके हम प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे. उन इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे पहले जो कहते हैं कि ये करनी चाहिए, पहले उसके बाद उन पॉइंट्स को देखेंगे कि जहाँ पे हम देखेंगे कि वी शुड नॉट यूज़ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी. तो विल सी दैट one by one. So first we see that pros, that is, the policymaker should try to stabilize the economy by using monetary and fiscal policy, right? So we'll see that as we know that the economy is inherently unstable and left on its own will fluctuate, right? So as we know that economy inherently is unstable, most of the time there is instability in each economy over in the world. Whenever we talk about any economy, Pakistan के बारे में बात करें, India के बारे में बात करें, US की बात करें, China की बात करें, if you talk about England, if you talk about any country, inherently basically economy is there is an unstable situation in the economy. And if we left on its own, अगर इसको अपने आप पे छोड़ दें, तो then it continue fluctuating. Different situation economy में arise होती रहती हैं, right? So policy makers, a policy can manage aggregate demand in order to offset this inherent instability and reduce the severity of economic fluctuation. So जो policies हैं हमारे पास, जैसा कि हमने पीछे देखा lectures में, हमने देखा कि 2 policies normally हैं जो government use कर सकती है. One is the monetary policy and the other is fiscal policy. तो policy maker जो है, government जो है, they can use these policy to stabilize the condition of by changing aggregate demand and then aggregate demand in order to offset the inherent instability in the economy and reduce the severity of economic fluctuation. तो गवर्नमेंट जो है, पॉलिसी मेकर जो है, वो इनको यूज़ कर सकते हैं, और जो इनहेरेंटली एक इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी मिलती है इकोनॉमी को, और
फ्लक्चुएट करती रहती है इकोनॉमी, उसको करेक्ट कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी इन द कंट्री. Then there is no reason for the society to suffer through booms or bust of the business cycle. Now what are the booms? Booms is that when there is increase in output in the economy or unemployment कमी बाकी होती है, economy grow कर रही होती है, there is growth in real GDP in the economy, तो उस सूरत हाल को हम ये कहते हैं कि there is a boom in the economy. तो whenever there is decrease in the level of output, unemployment बढ़ती है, poverty बढ़ती है, तो उस सूरत हाल को बस्ट और रिसेशन कहा जाता है. तो why society bear with or suffer with booms or recessions or bust of the business cycle always? We should use monetary and fiscal policy to basically take care of the society so that they should not suffer from these booms and bust of the business cycle. Now, monetary and fiscal policy can stabilize aggregate demand and thereby increase production and increase unemployment in the economy. So, these are some of the points which are in favor of using monetary and fiscal policy to stabilize the economy. Whenever there is instability in the economy, when economy is unstable due to any reason, there are fluctuations in the economy, so it is better or it is more advantage to use monetary and fiscal policy to stabilize the economy. Now कैसे use कर सकते हैं? As we have already seen that we can use the tools of monetary policy to stabilize the economy. कौन से tools हमने देखे थे? There are a lot of tools. We have discussed few tools in the previous lectures. हमने बात की थी the main tool of monetary policy are the money supply and the interest rate in the economy, right? And the tools for fiscal policy are the government purchases, government spending, and revenues are taxes, right? So government can use either mix of these two policies to stabilize the economy, or they can use independently each of the policies to stabilize the economy and to recover the economy from the short-term fluctuation by affecting the aggregate demand or aggregate supply, as we have already seen in the previous lecture कि government whenever there are fluctuation, हमने जब fluctuation का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब कभी इकोनॉमी में fluctuation आती है शॉर्ट रन में तो it affects the aggregate demand or aggregate supply in the economy. How we can recover or how we can get rid of from that economic fluctuation? By adopting monetary, by using monetary and fiscal policy in the country. Monetary policy का क्या है कि अगर आप if you need to increase the aggregate demand in the economy, you can use the money supply as a tool. Money supply आप बढ़ा देते हैं. जब money supply बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट कम होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है. इसी तरह whenever the government is interested to increase the investment in the economy, they can use they can decrease the interest rate कम होता है, investment बढ़ती है, production बढ़ती है, output बढ़ती है, economy grow करती है, aggregate demand for goods and services बढ़ जाती है. So this is how the government can use monetary policy to stabilize the economy or cover up or offset the effect of short-term economic fluctuations, right? इसी तरह हमने ये भी देखा कि government can use or policy maker can use fiscal policy as a tool to stabilize the economy. कैसे कर सकती हैं? One tool is the government spending, the other is taxes, by increasing or decreasing taxes, or by increasing or reducing revenue taxes, or by with the help of increase and decrease in government purchasing, or decrease or increase in taxes or revenue in the economy. तो हमने ये देखा कि पॉलिसी मेकर को इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए इन पॉइंट्स के बेस पे हम कह सकते हैं सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट हैव द व्यूज और ओपिनियन दैट पॉलिसी मेकर शुड यूज मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी. Now what are the consequences or what are the cons or disadvantages if we should use monetary policy? So policy makers should not try to stabilize the economy, should not use the monetary and fiscal policy to stabilize the economy. तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि पॉलिसी मेकर को they should not use monetary and fiscal policy to stabilize the economy. तो कौन से points हैं which goes in this favor? Like
monetary policy affects the economy with the long and unpredictable lags between the need to act and the time that it takes for these policies to work. तो बहुत सारा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है मॉनेटरी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट को अडॉप्ट करती है टू इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो क्या होता है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो जिस टाइम आप उसको अप्लाई करते हैं और व्हेन उसके इफेक्ट्स उसके रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें काफ़ी गैप होता है, लॉन्ग एंड अनप्रेडिक्टेबल लेग्स के बाद वो पॉलिसी इफेक्ट होती है और देन इट कैन रिकवर और ऑफसेट द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन फ्रॉम द इकोनॉमी। Many studies, many researchers indicate that changes in monetary policy have little effect on aggregate demand until about 6 months after the change is made. So if you have adopted any tool of monetary policy, either money supply or interest rate to correct the aggregate demand or to change the aggregate demand in the economy, तो आपने क्या करना है मॉनेटरी पॉलिसी जो है मिनिमम जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है कि जब ये इफेक्टिव हो सकती है, इफेक्ट कर सकती है उस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने जो सिचुएशन को वापस ला सकती है, द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड जो होता है वो 6 महीने का है, राइट। 6 महीने से पहले वो जो मॉनेटरी पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे दैट कैन नॉट इफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो दिस इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर को दे शुड नॉट यूज़ मॉनेटरी पॉलिसी टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जब आप अडॉप्ट करते हैं, जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो असरात हैं वो कुछ अरसे के बाद इकानमी पे ज़ाहिर होते हैं, इमीडिएटली ज़ाहिर नहीं होते। इट कैन नॉट इफेक्ट इमीडिएटली द इकानमी और इट कैन नॉट ब्रिंग स्टेबिलिटी इमीडिएटली इन द इकानमी। तो कुछ अरसे के बाद यानी मिनिमम जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 6 मंथ के बाद उसका इफेक्ट होना शुरू होता है। फिजिकल पॉलिसी वर्क्स विद लैग, इसी तरह फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो वो भी एक लैग के साथ काम करती है बिकॉज ऑफ लॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस that govern changes in spending and taxes. So if you want to bring some changes in taxes or government spending, you have to go through the process जो है you have to pass it through the legislators, जो कि you can talk about ये जो politicians हैं, you have to bring into pictures, वो आप कैबिनेट में ले जाते हैं, कैबिनेट में डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद असेंबली में जाता है, बिल पास होता है, राइट। तो whenever you want to change or bring new laws about taxes or you want to change the government spending, you have to evolve it in the process, एक process में आपको जाना पड़ता है और जिसका फिजिकल पॉलिसी जो है एक काफ़ी अरसे के बाद जो है इफ़ेक्ट करना शुरू करती है इकानमी को। It can take years even sometime to propose, pass and implement a major change in fiscal policy. So if you want to bring a major change in fiscal policy, like if you want to increase or decrease taxes or if you want to increase or decrease expenditure, it can take even sometime years. The process which we have to adopt, that if you have to develop policy, then you have to submit policy to different forums, it goes to the relevant ministries and then goes to the cabinet, then goes to the parliament. So after all this process a lot of time जो है उसमें गुजर जाता है। तो हम कह सकते हैं जो फिजिकल पॉलिसी भी एक लंबे काफ़ी अरसे के बाद 1 साल 2 साल के बाद उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं इकानमी पे। तो बोथ ऑफ द पॉलिसी जैसा कि हमने देखा कि बोथ ऑफ द पॉलिसीज़ कैन बी इफेक्टिव आफ्टर ए लैग in time period, after a certain lag, it could be 6 months, 1 year or 2 years. Now all too often policymakers can inadvertently exacerbate rather than mitigate the magnitude of economic fluctuation. तो दोनों जो policies हैं basically ये एक situation को even worse कर देती हैं। अगर आप if you use कुछ economists ये कहते हैं both of the policies, whether it is monetary policy or fiscal policy, and both of these policies can inadvertently exacerbate the situation rather than mitigate the magnitude of economic fluctuations. तो economic fluctuation के magnitude को कम करने के बजाय उसको ज़्यादा सीरियस ज़्यादा एग्जर्बेट कर देती हैं, राइट।
तो हमने कुछ पॉइंट्स देखे in favor of using monetary and fiscal policy to stabilize the economy when there are short-term fluctuation in the economy. उसके बाद हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात की, कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे जहाँ पे हमने ये देखा कि monetary and fiscal policy should not try to stabilize the economy when there are short-term fluctuation in the economy. हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके कुछ हमने पॉइंट्स की बात की। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को मतलब if as a layman if we talk about when there are serious economic fluctuations in the country, when economy is continuously unstable situation in the economy, तो policy maker को they should try and think to use monetary policy or fiscal policy to stabilize the economy and bring the equilibrium in the economy back. तो दिस वाज द फर्स्ट पॉलिसी डिबेट जो कि इकोनॉमिस्ट के दरमियान किसी भी मुल्क में चलती रहती है कि सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर इन फेवर ऑफ यूजिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट गिव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दैट दे से दैट कि मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को शॉर्ट रन में यूज़ शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन के लिए और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। It might be desirable if policy makers could eliminate all economic fluctuation, but this is not a realistic goal. तो it is possible कि अगर monetary and fiscal policy use करके हम इस economic fluctuation को ख़त्म तो कर सकते हैं, but it is not the realistic goal, ये ultimate objective नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ एक अपनी फोर्सेस होती हैं, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होते हैं, उनको काम करने देना चाहिए। वो काम करते हैं जब तो उस तरह इकोनॉमी वापस अपनी स्टेबिलिटी पे आ जाती है। तो दैट इज़ द मोस्ट एडवाइजेबल फॉर द पॉलिसी मेकर। बट इफ़ वी यूज़ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इट कैन ब्रिंग इट कैन एलिमिनेट ऑल इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, बट इट इज़ नॉट ए रियलिस्टिक गोल for the policy makers. This was the first debate which remains a macroeconomic policy debate which remains with the economist. तो कुछ लोग कहते हैं कि monetary और fiscal policy use करनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं use करनी चाहिए। Now we'll come to the second debate of macroeconomic policy, that is about should monetary policy be made by rule rather than by discretion. तो इसमें हम बात करेंगे, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है शुड बी अडॉप्टेड और मेड बाय रूल्स बाय लॉज, और कुछ ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है शुड बी यूज एज ए डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, डिस्क्रिशन पे होनी चाहिए पॉलिसी मेकर पे, गवर्नमेंट पे, whenever they feel they can use or adopt that monetary policy, no special rule or law is needed. So there is again a continuous debate between economists कि monetary policy जो है वो should be made by rule or should be made by discretion. So first of all we'll talk about some pros about that monetary policy should be made by rule. हम देखेंगे कि वो उन इकोनॉमिस्ट उनके व्यूज़ देखेंगे कि जो कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करने के लिए हमें इट शुड बी अडॉप्टेड बाय रूल्स और बाय लॉज, उसकी हम बात करेंगे। डिस्क्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैन सफ़र फ्रॉम इनकम्पिटेंस एंड अब्यूज़ ऑफ पावर। तो जब आप डिस्क्रेशनरी पॉलिसी यूज़ करते हैं तो दैट कैन सफ़र इनकम्पिटेंसी उसमें आ सकती है, उसमें अब्यूज़ ऑफ पावर आ सकता है कि इसमें स्टेट बैंक की और फेडरल बैंक जो होता है, फेडरल गवर्नमेंट उसकी मर्जी पे होता है, व्हेन एवर दे वांट दे कैन यूज़ द एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, व्हेन एवर दे वांट दे कैन यूज़ discourage less expansionary monetary policy, contractionary monetary policy use कर सकते हैं। तो it depends on the discretion of the government, so उस तरह incompetency आ सकती है। it depends on the total will and power of the government of the State Bank of Pakistan। तो जब भी वो चाहें इसको monetary policy को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं money supply को, तो वो basically that can suffer from the incompetence as well as it can leads us to the abuse of power in the country. To the extent that central bankers all themselves with politicians, discretionary policy can lead to economic fluctuation rather than electoral calendar, the political business cycle.
So as we know that in political government, so if the monetary policy should be adopted by a discretionary rule, at the discretion of the state bank, छोड़ें तो वो उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के, उनके वोट्स लेने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, दे कैन अडॉप्ट आइदर एक्सपेंशनरी या कंस्ट्रक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी विच बेसिकली फॉर द शॉर्ट टर्म can affect the purchasing power of the people, तो उससे उनके लोगों के दिल जीत लेते हैं और then they can get the vote and then can again get back into power। तो politically जो है basically अगर if it is the discretionary monetary policy अगर हम adopt करते हैं instead of adopting it by rule or law, तो उसमें problems आ सकते हैं, political जो है influence हो सकता है। There may be discrepancy between what policymakers say they will do and what they actually do, called time inconsistency of policy। So this could be possible अगर आप discretionary monetary policy use करते हैं तो there could be a difference that what they want to do basically and what they actually do। So there could be a difference, this could be called time inconsistency of policy। तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ दैट अगर डिस्क्रिशनरी पॉलिसी यूज करते हैं तो जो कह रहे हैं पॉलिसी मेकर वो एक्चुअली वो करते नहीं हैं, वो हो नहीं पाता, तो इनकंसिस्टेंसी आती है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड पॉलिसी में, इन टर्म्स ऑफ टाइम में। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं है अगर डिस्क्रिशनरी यूज करें। तो दिस अगेन गोज इनटू फेवर। तो ये पॉइंट हमें बताता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को should be made by rule or law, not should be by discretionary policy, because policy makers are so often time inconsistent. People are skeptical when central banks announce their intention to reduce the rate of inflation। तो जब ये इनकन्सिस्टेंसी आती है पॉलिसी में, जब गवर्नमेंट और द पॉलिसी मेकर डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं तो क्या होता है, लोग जो है skeptical हो जाते हैं when central bank announces their intention to reduce the inflation rate। अब हमने जैसा कि देखा कि इन्फ्लेशन रेट को कम या ज़्यादा करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक टूल होता है एंड दैट टूल इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पे हो कि जब वो चाहें मनी सप्लाई बढ़ा दें, जब वो चाहें मनी सप्लाई कर दें, तो दिस कैन ब्रिंग इनकन्सिस्टेंसी इन द पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी कैन बिकम इनकन्सिस्टेंट ओवर टाइम। और लोग जो हैं वो बिलीव नहीं करते इस पे कि उनको पता है कि जो गवर्नमेंट जो कह रही है वो करेंगे नहीं, और पॉलिसी मेकर जो कह रहे हैं वो अमल दरामद नहीं होगा। तो उससे लोग जो है लोगों में शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं, दे डोंट बिलीव द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट सीरियस भी होती है कि मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करके इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करेंगे और इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करेंगे, तो लोगों को उस पर एतबार नहीं होता। नो कमिटिंग द फेड to a moderate, or committing the central bank to a moderate and steady growth of the money supply would limit incompetence, abuse of power and time inconsistency। तो जैसा कि हमने देखा कि तीन चीज़ें हो सकती हैं अगर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करे बाय डिस्क्रिशन नॉट बाय लॉ। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तीन इसके नेगेटिव पॉइंट हैं कि अगर डिस्क्रिशन यूज़ की जाए, अगर लॉ से ना यूज़ की जाए, तो तीन नेगेटिव पॉइंट हैं कि एक तो इन जो है ग्रोथ में जो इनकम्पिटेंसी आ जाती है, इट लिमिट्स स्टेडी ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई वुड लिमिट इनकम्पिटेंस। तो इनकम्पिटेंस अब्यूज ऑफ पावर इसमें होता है और टाइम में इनकन्सिस्टेंसी आती है, टाइमली जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होती। तो हमने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है किसी रूल, किसी लॉ के तहत अडॉप्ट करनी चाहिए, इख्तियार करनी चाहिए, ना कि इट शुड बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द पॉलिसी मेकर और नॉट इट शुड बी डिस्क्रिशन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। जिस वक्त वो चाहे मर्जी से मनी सप्लाई बढ़ा दें, कम कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई लॉ होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए जिसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। नाउ
हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जो वो उन इकोनॉमिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि जो ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी शुड नॉट बी मेड बाय रूल, इट शुड बी यूज बाय डिस्क्रिशन। तो अब ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे कि जो कि फेवर करते हैं इस चीज़ को, इस पॉइंट को, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है बाय डिस्क्रिशन यूज होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी यूज बाय रूल और लॉ, इट शुड बी यूज बाय discretion, right? So an important advantage of discretionary monetary policy is that its flexibility, right? So it is flexible, right? So whenever the policymaker need or desire, whenever they see that and that the economy is becoming unstable, inflation rate बहुत बढ़ रहा है, inflation rate, unemployment बढ़ रही है, तो वो monetary policies को use कर सकते हैं। But if they have to wait that they should get a rule or law from the government आएगा, उसके बाद उसको use करेंगे, तो that basically limit the flexibility of monetary policy। तो सबसे बड़ा advantage जो discretionary monetary policy का ये है कि it is flexible, right? So whenever policymaker or government want to increase or decrease money supply to stabilize the economy, they can adopt it very easily if it is on the discretion of the policymaker or on the government. Inflexible policies will limit the ability of policymaker to respond to changes in economic circumstances. लेकिन जैसा कि हमने कहा कि economic monetary policy जो है should be used by law or rule, तो वो क्या होती है कि इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। बेसिकली इनफ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ क्या करती हैं, पॉलिसी मेकर की एबिलिटीज़ को लिमिट कर देती हैं, राइट? दे कैन नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू चेंजिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। अगर सपोज इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, पॉवर्टी बढ़ रही है, आउटपुट कम हो रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो अगर गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर को, दे हैव टू वेट फॉर द रूल और लॉ of the monetary policy by the government, so then of course they cannot use their discretion, they cannot correct or offset the economic fluctuations from the economy. So it limits the ability of the policy makers to deal with the different economic circumstances, right? तो अगर उनके पास ये ability है, उनके पास ये discretion है कि वो use कर सकते हैं monetary policy को, जब वो चाहें मनी सप्लाई बढ़ा दें, जब वो चाहें मनी सप्लाई कर दें, बट ऑफ कोर्स दे हैव टू सी द फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट द इकोनॉमी। तो वो ज़्यादा उनकी एबिलिटी को बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को टैकल कर सकते हैं। The alleged problems with discretion and abuse of power are largely hypothetical। तो जिन प्रॉब्लम्स की हमने पीछे बात की, हमने ये बात की कि अगर डिस्क्रिशनरी यूज़ किए जाएँ, डिस्क्रिशनरी तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो all are based on hypothesis, these are all hypothetical, कोई फैक्ट्स, कोई फिगर्स पे बात नहीं है। जो जिनकी पॉइंट्स की हमने बात की, तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जितने भी हमने प्रॉब्लम्स की हमने बात की विद द डिस्क्रिशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, all are based on the hypothetical situations. Also, the importance of political business cycle is far from clear। तो जिसमें हमने political interference की बात की, वो भी it's far from the scene। बिजनेस साइकिल से काफ़ी उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो है should be made by discretion, not should be made by rule or law। तो इस डिबेट में जैसा कि हमने देखा, हमने कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस किए। वी हैव डिस्कस सम पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दैट मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी मेड बाय रूल और लॉ की हमने बात की। उसके बाद हमने ये कहा कि वी हैव डिस्कस फ्यू पॉइंट्स विच आर इन फेवर ऑफ दैट मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी यूज्ड बाय लॉ और सम रूल, नॉट शुड बी बाय discretion, right? तो basically as a layman, as an economist, अगर आप सोचें, as a businessman, as a business student अगर आप सोचें, तो it's monetary policy, there should be flexibilities, right? So it should be with the central bank
आर द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अगर उनके पास ये डिस्क्रिशनरी, उनके पास ये पावर्स होनी चाहिए कि वेन एवर दे फील द इकोनॉमी देयर आर फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी, व्हेन इकोनॉमी इज अनस्टेबल, they can use the monetary policy, whether it's expansionary or contractionary monetary policy, depending on the situation of the economy। तो उनके पास इख्तियार होना चाहिए, उनके पास पावर होनी चाहिए कि जब देखते हैं कि इकोनॉमी की सूरत हाल बिगड़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, तो वो क्या करें कि दे कैन यूज मॉनेटरी पॉलिसी एज ए टूल टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अगर इफ दे हैव टू वेट बाय रूल और लॉ, so they have to look for the government, they need the blessing of the government, they need the blessing of the parliament, they need the blessing of the cabinet। तो वो जो रूल एंड लॉ वहाँ से पास होगा, it takes time, it needs times, and then it can, monetary policy can become effective। तो so this is the debate which is continuously going on between the economists। कुछ लोग ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्क्रिशनरी तौर पे यूज़ करना चाहिए, इट शुड बी ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द पॉलिसी मेकर और ऑफ द गवर्नमेंट और बाय द ऑन द स्टेट बैंक और बाय द फेडरल बैंक। कुछ लोग ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को इट शुड बी यूज बाय रूल और law। So this is the second debate which remains with the economists in the country। Now we'll talk about the third debate जो कि इकोनॉमिस्ट के दरमियान रहती है, जिस पे वो बहस करते रहते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट उसके फेवर में बात करते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट बात करते हैं। तो we'll talk about what is the third debate in detail। The third debate is about should the central bank aim for zero inflation। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक शुड एम फॉर जीरो इन्फ्लेशन, कुछ ये कहते हैं कि दे शुड नॉट एम फॉर जीरो इन्फ्लेशन बिकॉज यू कैन नॉट कम्प्लीटली कंट्रोल इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखेंगे, बात करेंगे उन इकोनॉमिस्ट की जो लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को ये एम करना चाहिए, स्टेट बैंक को ये एम करना चाहिए कि दैट देयर शुड बी जीरो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। उसके बाद बात करेंगे उन इकोनॉमिस्ट की जो कुछ लोगों की जो ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को ये एम नहीं करना चाहिए, should not aim for the zero inflation because inflation cannot be completely controlled from the economy, inflation remains in the country। तो उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उन इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को जो ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक शुड एम फॉर जीरो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन confers no benefit to society but it imposes several real cost। तो जैसा कि हमने देखा जब हमने इन्फ्लेशन का चैप्टर पढ़ा, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट इन्फ्लेशन, कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन की बात की, उसके बाद इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट किया, तो हमने ये देखा था कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इट कैन इफेक्ट सोसाइटी इन ए नेगेटिव वे एंड इट imposes lot of cost or several costs to the society। जिन कास्ट की हमने बात की कि देयर इज शू लेदर कास्ट, हमने बात की मेन्यू कॉस्ट की बात की, उसके बाद हमने इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटिव प्राइसेस की बात की, उसके बाद अनइंटेंडेड चेंजेस इन टैक्सेस लायबिलिटीज की बात की, एंड देन कन्फ्यूजन एंड अनकन्वीनियंस की बात की, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्बिट्रेरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये ऐसी कॉस्ट हैं जिनकी हमने बात की कि अगर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होता है तो सोसाइटी को इन किसी न किसी कॉस्ट से वास्ता पड़ता है। दे हैव टू फेस one or two or more of these costs when there is inflation in the economy। तो हम ये कहते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, सम पॉलिसी मेकर ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो सोसाइटी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, इट इज़ बैड फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी हैज़ टू बेयर lot of costs, several costs when there is inflation, high inflation in the economy। और वो costs क्या हैं कि जिसकी जो कि आपको सामने नज़र आ रही हैं, जिनकी हमने डिटेल में हमने बात की थी जब हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था, कि हमने देखा था कि जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होता है तो इकोनॉमी को, सोसाइटी को बहुत सारी नुकसानात, बहुत सारी कास्ट बर्दाश्त करना पड़ती है जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं। शू लेदर कॉस्ट हो सकती है, मेन्यू कॉस्ट हो सकती है, टैक्स लायबिलिटीज़ की बात हो सकती है, कन्वीनियंस हो सकती है, कन्फ्यूजन इनकन्वीनियंस हो सकती है, सोसाइटी को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो लॉट ऑफ कॉस्ट सोसाइटी हैज़ टू बेयर व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन, देयर इज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो इसकी वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। तो इन्फ्लेशन को सोसाइटी से रिमूव करना चाहिए, ज़ीरो करना चाहिए स्टेट बैंक को, सेंट्रल बैंक को फ्राम द कंट्री, फ्राम द इकोनॉमी।
रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन इज ए पॉलिसी विद टेम्परेरी कॉस्ट एंड परमानेंट बेनिफिट्स। तो अगर गवर्नमेंट जो है जब कोशिश करती है, सेंट्रल बैंक जब कोशिश करता है कि इन्फ्लेशन को ज़ीरो किया जाए, इन्फ्लेशन को इकॉनमी ख़त्म किया जाए, तो टेम्परेरली थोड़े अरसे के लिए कुछ ना कुछ कास्ट सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती है, बट उसके बेनिफिट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हैं। तो राइट, तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में तो कोई कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी, कि कास्ट क्या है कि लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगी, पैसा कम होगा, आउटपुट कम होगी। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में जब प्राइसेस कंट्रोल हो जाती हैं, इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाती है इकोनॉमी से, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। जब परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाता है, और सोसाइटी जो है, पॉवर्टी जो है मुल्क से उसमें कमी वाक़ हो जाती है। तो इन द लॉन्ग टर्म उसके जो बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टेम्परेरली अगर इन्फ्लेशन को जब आप ज़ीरो करते हैं, कम करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उसकी कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है सोसाइटी को। बट इन द लॉन्ग रन अगर उसकी बात करें तो देयर आर बेनिफिट्स ऑफ दी this zero inflation. Once this inflationary recession is over, the benefits of zero inflation would persist. तो जब उसका जो disinflationary recession है वो ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो देन हम ये देखते हैं कि the benefits of zero inflation would persist in the long run or for the long term. अब हम उन पॉइंट्स की बात, ये तो ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो जिनकी बेस पे हम कह सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को ये एम करना चाहिए कि देयर शुड बी ज़ीरो और मिनिमम इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अब नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑफ द पॉइंट दैट सेंट्रल बैंक शुड नॉट एम फॉर जीरो इन्फ्लेशन। तो कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ पॉलिसी मेकर ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को ये एम नहीं करना चाहिए, दिस शुड नॉट बी एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल बैंक टू ज़ीरो द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। और उन पॉइंट्स की बात करेंगे why they should not aim for the zero inflation, उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। जीरो इन्फ्लेशन इज probably unattainable, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली। अगर हम बात करें, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट द सिचुएशन ऑफ जीरो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जीरो इन्फ्लेशन पे ले आए इकोनॉमी को, एंड टू गेट द इन्वॉल्व देयर इन्वॉल्व्स आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल कॉस्ट दैट आर टू हाई। तो अगर आप कोशिश भी करेंगे कि ज़ीरो आउटपुट लाने की, तो ज़ीरो इन्फ्लेशन लाने की, तो उसमें क्या होगा कि आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी बहुत सारी हमें सोशल कॉस्ट जो हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, दैट वुड बी टू हाई, राइट। सो प्रैक्टिकली अगर आप बात करें तो ज़ीरो इन्फ्लेशन जो है इज़ अनअटेनेबल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेन इन द इकोनॉमी। Policymaker can reduce many of the cost of inflation without actually reducing inflation. तो अभी जिन हमने कास्ट की बात की कि सोसाइटी को बेयर करनी पड़ती हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो पॉलिसी मेकर जो है इसके अलावा कुछ ऐसे मेजर्स हैं कि जो अडॉप्ट कर सकते हैं जिनसे उस कास्ट का जो बर्डन है सोसाइटी से कम किया जा सकता है विदाउट एक्चुअली रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन इन द इकानमी। तो बहुत सारी ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास होती हैं सोसाइटी को उसको कवर अप करने के लिए, लाइक दे कैन इंक्रीज अदर एक्सपेंडिचर इन सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन को एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते हैं, सैनिटेशन की बात कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर सेक्टर्स जिस पे गवर्नमेंट जो है कंसंट्रेट कर सकती है और सोसाइटी की कॉस्ट जो है उसको कम कर सकती है विदाउट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन टू ज़ीरो लेवल। सो इसमें हमने ये देखा कि एक ये डिबेट जो है पॉलिसी मेकर के दरमियान चलती रहती है, पॉलिसी मेकर इस पे डिबेट करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं कि सेंट्रल बैंक को क्या एम करना चाहिए कि देयर शुड बी ज़ीरो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, और सेंट्रल बैंक शुड नॉट एम फॉर द ज़ीरो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो हमने इसके फेवर में भी बात की, हमने ये कहा कि सेंट्रल बैंक को एम करना चाहिए, दे शुड एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन, बिकॉज सोसाइटी को बहुत सारी कास्ट का सामना करना पड़ता है, अच्छी चीज़ नहीं होती इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए, और शॉर्ट टर्म में तो कुछ शायद कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। तो सेंट्रल बैंक शुड एम, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक शुड एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, मोस्ट ऑफ द पॉलिसी मेकर ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को एम नहीं करना चाहिए ज़ीरो इन्फ्लेशन के लिए, because this is not attainable, it is unattainable and
if the central bank aim for zero inflation, it has a severe consequences. It reduces output level in the economy. Unemployment बढ़ जाती है, unemployment बढ़ती है, सोसाइटी को बहुत सारी सोशल कॉस्ट का सामना करना पड़ता है. तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है. इन्फ्लेशन रहता है थोड़ा बहुत इकोनॉमी में, उसको आप ज़ीरो नहीं कर सकते. उसके बाद हमने कहा कि पॉलिसी मेकर कैन रिड्यूस मैनी कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी विदाउट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन रेट टू ज़ीरो लेवल. तो हमने ये देखा कि कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ पॉलिसी मेकर कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को ये एम करना चाहिए कि देयर शुड बी ज़ीरो इन्फ्लेशन. कुछ ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक शुड नॉट एम फॉर ज़ीरो इन्फ्लेशन. तो ये तीसरी डिबेट है जिसकी हमने अभी बात की, जो कि इकोनॉमी में रहती है डिफरेंट कंट्रीज में, बिटवीन द पॉलिसी मेकर, बिटवीन द इकोनॉमिस्ट चलती रहती है बात. कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इन्फ्लेशन को ज़ीरो करना चाहिए सेंट्रल बैंक को, कुछ ये कहते हैं कि ज़ीरो नहीं करना चाहिए. इट रिमेन्स देयर इन द इकोनॉमी. नाउ विल कम टू द फोर्थ डिबेट व्हिच रिमेन्स बिटवीन द इकोनॉमिस्ट. सो दिस इज द should fiscal policy maker reduce the government debt? क्या फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को अडॉप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए डेट को कम करने के लिए? अब इसके बारे में हम देखेंगे. ये भी एक डिबेट गवर्नमेंट में रहती है, पॉलिसी मेकर में रहती है, इकोनॉमिस्ट के दरमियान रहती है कि क्या फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए डेट को कम करने के लिए कि नहीं करना चाहिए. तो हम इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, कुछ हम इसके अगेंस्ट बात करेंगे. तो फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे क्या इकोनॉमी के लिए ये अच्छा है कि नहीं कि फिस्कल पॉलिसी को यूज़ किया जाए टू रिड्यूस द डेट बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ दोज इकोनॉमी, अब सबसे पहले हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि इसकी फेवर करते हैं गवर्नमेंट को यूज़ करनी चाहिए फिस्कल पॉलिसी को. बजट उसका बैलेंस होना चाहिए, और जब बैलेंस बजट होगा तो उससे उसको डेट जो है उसका कम होगा. तो गवर्नमेंट शुड यूज़ फिस्कल पॉलिसी टू रिड्यूस द गवर्नमेंट डेट. तो उसके जो हक में जो पॉइंट है, उसकी जो फेवर में पॉइंट्स हैं उनकी बात करेंगे. और ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे कि जो कि इकोनॉमिस्ट की बात करेंगे जो ये कहते हैं वो इसकी हक में है कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट को यूज़ करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए टू रिड्यूस बजट deficit or to reduce the debt from the economy. Now budget deficit imposes an unjustifiable burden on the future generation by raising taxes and lowering their income. So जो बजट डेफिसिट है इज़ ए वेरी टेरिबल सिचुएशन फॉर द इकानमी. नो जब हम बजट डेफिसिट की बात करते हैं तो कब बजट डेफिसिट होता है? जैसे कि हमने कहा कि दो साइड्स हैं फिस्कल पॉलिसी की, दो पैरामीटर्स हैं फिस्कल पॉलिसी के. एक साइड पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, एक साइड पे क्या है? टैक्सेस हैं. तो जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट की परचेजेस बढ़ जाती हैं टैक्सेस से या रेवेन्यू से, तो उसको हम बजट डेफिसिट का नाम देते हैं. सो जब बजट डेफिसिट होता है तो दिस इज अनजस्टिफाइबल बर्डन, इट प्लेज अनजस्टिफाइबल बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन. जो कमिंग जनरेशन है, जो नई आने वाली नस्ल है, उन पे एक ऐसा बर्डन जो है आता है जो कि अनजस्टिफाइबल है. वो कैसे बर्डन आता है? बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, बाय रेजिंग टैक्सेस. टैक्सेस क्यों गवर्नमेंट बढ़ाती है? कि बजट डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं, खर्च को कम करना चाहते हैं, तो वो बजट को बैलेंस करना चाहते हैं. एंड दे लोअर देयर इनकम्स. तो बेसिकली बजट डेफिसिट इम्पोज करता है एन अनजस्टिफाइबल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन बाय रेजिंग देयर टैक्सेस एंड लोअरिंग देयर इनकम. सो व्हेन द डेट्स एंड accumulated interest come due, future taxpayer will face a difficult choice. तो जब हम आपका जो डेट है एक्यूमुलेट होता जाता है, इंटरेस्ट रेट एक्यूमुलेट होता जाता है, तो फ्यूचर टैक्स पेयर पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है. एंड इट डिफ़िकल्ट टू चॉइस बिटवीन फॉर द पॉलिसी मेकर टू रिड्यूस डेट और टू एक्यूमुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑन द इन द इकोनॉमी. They can higher taxes, enjoy less government spending, or both. So there is a choice for the policy maker. Either they can there is a choice for the individuals, for the society. Either they can pay higher taxes or enjoy less government spending, or both. So it's, the society or the individuals of the country, of the economy, are in difficult situations. So they have to make choice. Either they have to pay higher taxes or
enjoy less spending of the government, or they have to select both. By shifting the cost of current government benefits to future generation, there is bias against future taxpayer. तो this creates bias basically. हम जब ये कहते हैं कि जब हम cost of current government benefits जो है अब करंटली एट प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट है, उसको पूरा करने के लिए वो टैक्स बढ़ाती है. जब टैक्स बढ़ाती है तो बेसिकली इट इफेक्ट्स द फ्यूचर जनरेशंस, एंड दिस बेसिकली क्रिएट्स ए बायस अगेंस्ट द फ्यूचर टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री. सो डेफिसिट reduces national saving, lead to a smaller stock of capital which reduces productivity and growth. तो deficit का नुकसान होता है बेसिकली तो गवर्नमेंट को चाहिए कि डेफिसिट को कम करे, बजट को बैलेंस करे, और इनकम बढ़ाए, टैक्सेस को बढ़ाए, और दूसरी साइड पे एक्सपेंडिचर को कम करे. तो जब ये एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, रेवेन्यू को बढ़ाएंगे टैक्सेस से, तो उससे क्या होगा, बजट बैलेंस होगा और गवर्नमेंट का जो डेट है वो कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का डेट जो है रिड्यूस हो जाएगा. सो डेफिसिट बेसिकली क्या है, डेफिसिट का नुकसान क्या है, इससे जो है नेशनल सेविंग्स कम हो जाती हैं. जब नेशनल सेविंग कम हो जाती हैं तो लीड्स टू ए स्मॉलर स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी. जब स्टॉक कम होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कम होती है. जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, विच रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी कम होती है, ग्रोथ कम होती है, और एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है, और यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ जाती है. तो इसके ये जो पॉलिसी डिबेट है, ये जो इकोनॉमिस्ट हैं ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को बजट अपना बैलेंस करना चाहिए, और दे शुड यूज फिस्कल पॉलिसी to reduce budget deficit, and then which in turn will reduce the government debt from the economy. So these are some of the point which goes in favor of the debate, that is the government should adopt fiscal policy to reduce budget deficit and reduce government debt from the economy. Now some of the points जो इसके consequences हैं, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट भी हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी मेकर हैं जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी यूज़ नहीं करनी चाहिए बजट डेफिसिट को कम करने के लिए. द प्रॉब्लम विद द डेफिसिट इज़ ऑफन एग्जेजरेटेड. इतना ज़्यादा डेफिसिट नहीं होता इकोनॉमी में, लेकिन इसको जो इशू है, एक डेफिसिट का एक जो वर्ड है, लफ्ज़ है, इसको एग्जेजरेट किया जाता है. कहा जाता है कि देयर इज़ डेफिसिट इन द इकोनॉमी, और इसके बारे में बातें की जाती है, उसको ज़्यादा एग्जेजरेट किया जाता है. The transfer of debt to the future may be justified because some government purchases produces benefits well into the future. तो जैसा कि हमने ये कहा कि जो गवर्नमेंट अगर अपना डेफिसिट कम करना चाहती है और टैक्स बढ़ाना चाहती है, फ्यूचर जनरेशन पे बर्डन बढ़ता है, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ डेट टू फ्यूचर जनरेशन है मे बी जस्टिफाइड, उसको हम जस्टिफाइड कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट जब परचेज करती है, गवर्नमेंट जब अपना परचेज बढ़ाती है तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट कर सकते हैं. कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, कुछ ऐसे प्लांट्स लगाती है, कुछ ऐसे प्लान्स बनाती है जो कि फ्यूचर में कम आने वाली नस्ल को उसके फ़वाइद हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस बढ़ाए हैं और अपने खर्चे बढ़ा रही है, इनकम उसके पास आ रही है, तो उसका जो फ़ायदा है जो करंट लोग हैं, जो प्रेजेंट लोग हैं, उनको होता है, फ्यूचर जनरेशन को भी हो सकता है. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट आल्सो plans for the long term also. There are short term plan of the government, long term plans भी होते हैं, तो उससे फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा हो सकता है. The government debt can continue to rise because population growth and technological progress increases the nation's ability to pay the interest rate on debt. गवर्नमेंट का जो डेट है वो कंटिन्यू होता है, बढ़ता रहता है, उसको आप कम नहीं कर सकते. उसकी वजह ये है, दो रीज़न बताई गई हैं जो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि एक तो ये है कि पॉपुलेशन बढ़ती रहती है. जब पॉपुलेशन बढ़ती रहती है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, दे नीड मोर स्पेंडिंग, मोर परचेजेज. तो उसको अगर अपने रिसोर्सेज से नहीं मिल रहा, टैक्सेस से नहीं मिल रहा, तो वो बारो करते हैं, तो डेट राइज करता रहता है. दूसरा ये है कि टेक्निकल प्रोग्रेस इकोनॉमी में होती रहती है. टेक्निकल प्रोग्रेस बढ़ती है तो नेशन की एबिलिटी बढ़ती है प्रोड्यूस करने के लिए. जब प्रोड्यूस करने की एबिलिटी बढ़ती है तो
प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा पे कर सकते हैं। उनकी एबिलिटी, एक कौम की, एक मुल्क की जो एबिलिटी टू पे द इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ जाती है जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ, टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के साथ एबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्शन की एबिलिटी ऑफ नेशन बढ़ती है टू पे द इंटरेस्ट रेट ऑन डेट। तो डेट जो है ये कुछ लोग, ये पॉलिसी मेकर ये कहते हैं कि डेट कम नहीं हो सकता, ये बढ़ता रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट विच गोज इन फेवर इन फेवर दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बैलेंस इट्स बजट डेफिसिट रहता है। गवर्नमेंट को अपना फिस्कल पॉलिसी यूज़ नहीं करनी चाहिए, टैक्सेस नहीं बढ़ाने चाहिए, टैक्सेस कम या ज़्यादा नहीं करने चाहिए टू रिड्यूस इट्स बजट डेफिसिट। तो अभी इस पॉलिसी में हमने ये बात की कि गवर्नमेंट को क्या फिस्कल पॉलिसी यूज़ करनी चाहिए टू करेक्ट इट्स बजट डेफिसिट आर नॉट। तो हमने बात की, हमने कुछ पॉइंट ऐसे डिस्कस किए। कुछ सम इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को दे शुड यूज़ फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल इट्स बजट डेफिसिट एंड विच इन टर्न रिड्यूस द गवर्नमेंट डेट फ्रॉम द इकोनॉमी। और उसके बाद हमने बात की, कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये, कुछ पॉलिसी मेकर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट शुड नॉट यूज़ फिस्कल पॉलिसी टू करेक्ट इट्स बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट रहता है हमेशा इकानमी में, उसको बोरोइंग करनी पड़ती है, बजट डेबिट भी रहता है, बढ़ता रहता है, बिकॉज एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन जब होती है तो पॉपुलेशन बढ़ती है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है और एबिलिटी एक नेशन की, एक कौम की बढ़ जाती है उसको रीपे करने के लिए, इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए। तो दिस डिबेट कंटिन्यू बिटवीन इकोनॉमिस्ट और बिटवीन द पॉलिसी मेकर इन एनी कंट्री और इन एनी इकोनॉमी। तो ये बहस चलती रहती है कि फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, टू स्टेबलाइज इट्स बजट एंड इट्स डेट फ्रॉम द इकोनॉमी। तो नाउ विल कम टू द लास्ट डिबेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जिसकी हम बात करेंगे, एंड दैट इज अबाउट शुड द टैक्स लॉज बी रिफॉर्म टू इनकरेज सेविंग और नॉट। तो इस पे भी बहस होती रहती है कि क्या नए टैक्सेस में रिफॉर्म्स लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए दैट इनकरेज सेविंग इन द इकोनॉमी। तो इस पे हम बात करेंगे। तो दिस डिबेट इज अगेन, इस पे बात होती रहती है, इकोनॉमीज में, मुल्कों में बात होती रहती है कि टैक्सेस में रिफॉर्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मुख्तलिफ लोग रिसर्च करते रहते हैं इसके हक में, इसके अगेंस्ट में। तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए बिकॉज इट इनकरेज टू इनकरेज सेविंग इन द कंट्री। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए, टैक्स लॉज में रिफॉर्म नहीं होने चाहिए। तो अब उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। We'll talk about first for the points which are in favor that tax laws should be reformed to encourage saving in the country. A nation's saving rate is key determinant of long-run economic prosperity. Saving is a very, very important element or parameter of economic growth or economic prosperity of a country. अगर जब सेविंग हम कहते हैं, वेदर इट इज़ डोमेस्टिक सेविंग और नेशनल सेविंग और द प्राइवेट सेविंग्स की हमने बात की। सो एनी टाइप ऑफ सेविंग, व्हेनेवर द सेविंग्स इन द इकोनॉमीज आर इंक्रीजिंग, वेदर इट इज़ प्राइवेट और नेशनल सेविंग, तो क्या होता है, सेविंग्स के बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमी में बढ़ती है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और जो इकोनॉमी प्रॉस्परस होती है, राइट। सेविंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, ऑफ एन इकोनॉमी। A nation productive capability is determined by largely how much it saves and invests for the future. So it depends, किसी मुल्क का, किसी नेशन का इस चीज़ पे बड़ा इन्हिसार होता है, डिपेंड करती है कि वो अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करते हैं, कितना खर्च करते हैं, और हाउ मच they invest of their saving for future investment, for the future investment. तो कितना उसका हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट से आउटपुट, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में इजाफा होता है। सो व्हेन द सेविंग रेट इज़ हायर, more resources are available for investment in new plant and equipment. तो गवर्नमेंट को टैक्स लॉज नए ऐसे लाने चाहिए, ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करने चाहिए जिससे सेविंग लोग, पीपल विल बी मोटिवेटेड टू सेव मोर, तो मोर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो
Here we will talk about particular US economy. The US tax system discourages saving in many ways, such as heavily taxing the income from capital by reducing benefits for those who have accumulated wealth. तो जिनके पास पैसा है, वेल्थ है, इकट्ठी की दौलत है उनके पास, तो उस पर वो हैविली टैक्स है इन US इकोनॉमी, जो कि डिस्करेज करता है सेविंग को, राइट। तो ऐसे टैक्स लॉज लाने चाहिए, टैक्स में रिफॉर्म लाने चाहिए, ऐसे टैक्स जो है इंट्रोड्यूस करने चाहिए इकोनॉमी में, जिससे इंसेंटिव मिले लोगों को, सोसाइटी को, टू प्रमोट, टू इंक्रीज देयर सेविंग। जब वो अपनी सेविंग्स बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। So these are some of the points which are in favor of the policy makers. The tax laws should be reformed to encourage saving in the economy. Now अब we'll talk about for those points जो कि जिसमें हम देखेंगे कि tax laws should be reformed. We'll continue with those points कि tax laws को reform करना चाहिए. The consequence of high capital income tax policies are reduced saving, reduced capital accumulation, low productivity and reduced economic growth. तो जब आप high टैक्सेस लगाते हैं ऑन कैपिटल इनकम तो उसका क्या होता है कि इट रिड्यूस सेविंग्स, इट रिड्यूस कैपिटल अकोमोडेशन, इट रिड्यूस लेबर प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी. An alternative to current tax policies advocated by many economists is consumption tax. So instead of levying tax on capital income, अब इनकम पे टैक्स लगाने के बजाय जो अल्टरनेट इकोनॉमिस्ट प्रपोज करते हैं इट इज द कंजम्पशन टैक्स. तो कंजम्पशन पे टैक्स लगाएं तो दैट इज गुड. दिस इनकरेज पीपल टू सेव मोर. जब सेविंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, ग्रोथ बढ़ेगी इकोनॉमी में. सो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग capital tax on capital tax on income of the individual or the society, हमें consumption tax को देखना चाहिए. तो इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि they should introduce consumption tax instead of a capital income tax. So with the consumption tax, household pay taxes based on what it spend, not on what they earns, right? So this encourages savings and investment in the economy. Income that is saved is exempted from taxes until the saving is later withdrawn and spent on consumption good. तो consumption tax का ये फायदा है कि that is on the part of income which is consumed, जो आप खर्च करते हैं उस पे होता है, not on the part of income which you have saved. लेटर ऑन जब फ्यूचर में आप सेविंग को खर्च करते हैं तो उस पर टैक्स होता है, लेकिन बट व्हेन यू हैव सेव्ड सम मनी फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट तो उस पर टैक्स नहीं होता. तो इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि टैक्स में ऐसे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ऐसे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करने चाहिए विच इनकरेज saving, and that can be done only when we introduce consumption tax instead of capital tax, high capital income tax on the income of the individual or firms of the society. So these are some of the points which goes in favor that tax laws should be reformed in such a way that encourage savings in the economy. Now we'll talk about some points. उन points की बात करेंगे जो कि कुछ economists ये कहते हैं कि government should not reform taxes to encourage saving. Tax laws should not be reformed. Now many of changes in taxes laws to stimulate saving would primarily benefit the wealthy. अब जब आप टैक्स रिफॉर्म्स में आप लाते हैं, जब जैसा कि हमने कहा कि कंजम्पशन टैक्स को बढ़ाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैपिटल इनकम टैक्स, तो उससे उन लोगों को फ़ायदा होता है जो कि ऑलरेडी रिच हैं, अमीर हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो उनकी हौसला अफजाई होती है एंड दे बेसिकली स्टिमुलेट टू सेव मोर इंस्टेड ऑफ पुअर पीपल. So high income household save a higher fraction of their income and lower income household को फ़ायदा नहीं होता, वो सेव ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि आपने कंजम्पशन पे टैक्स लगा दिया है. जब कंजम्पशन पे टैक्स लगाते हैं तो जिनकी इनकम ऑलरेडी कम है, सो दे हैव टू स्पेंड मोर और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन कंजम्पशन. सो इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा, उन हाउस होल्ड को फ़ायदा होगा जिनकी इनकम ज़्यादा है या दोज पीपल हु आर मोर वेल्दी इन द इकोनॉमी. एनी टैक्स चेंज दैट फेवर्स पीपल हु विल सेव tend to favor people with higher income. So reducing the burden on the wealthy would lead to less egalitarian society. तो जब आप
उन लोगों पे बर्डन कम कर देते हैं जो कि ऑलरेडी अमीर हैं, वेल्दी हैं, तो दैट विल बेसिकली लीड टूवर्ड्स ए सोसाइटी विच इज़ नोन एज एगलिटरियन सोसाइटी। तो गरीबों को फ़ायदा नहीं होगा, अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो गैप है बिटवीन पुअर एंड रिच वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का गैप है वो भी बढ़ता जाता है। तो दिस वुड आल्सो फोर्स द गवर्नमेंट टू रेज द टैक्स बर्डन ऑन द पुअर। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को मजबूरन जो है गरीबों पे टैक्स बढ़ाना पड़ जाएगा। तो अभी इसमें हमने बात की, इस पॉलिसी में हमने बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट द पॉइंट्स के विच आर इन फेवर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स, हमें टैक्स रिफॉर्म्स करने चाहिए टू इनकरेज सेविंग इन द इकोनॉमी। उसके बाद हमने बात की उन पॉइंट्स की कि देयर आर सम इकोनॉमिस्ट हु बिलीव दैट और हु सेड दैट कि इकोनॉमी में टैक्स रिफॉर्म्स नहीं लाने चाहिए टू इनकरेज सेविंग, बिकॉज इससे उन लोगों को फ़ायदा होता है कि हु आर मोर वेल्दी, हु आर मोर रिच, और जो गैप है, जो डिस्टेंस है बिटवीन पुअर एंड रिच वो बढ़ता जाता है और इससे गरीबों पे बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. So I will try to summarize in 2 or 3 minutes what we have learned today. So we started to discuss the debates debate about macroeconomic policies, जो कि इकोनॉमिस्ट में रहती है कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट ऑलवेज डिबेट और डिस्कस अमंग देमसेल्फ। कुछ लोग कुछ चीज़ों के हक में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं। तो हमने 5 डिबेट्स की बात की। देयर आर 5 डिबेट्स विच कंटिन्यू विच रिमेन्स इन द इकोनॉमी। उनके बारे में कुछ इकोनॉमिस्ट उनके फेवर में बात करते हैं, कुछ उनके अगेंस्ट में बात करते हैं। तो व्हाट वी सेड दैट जब हमने पहली डिबेट की बात की थी तो उसमें हमने कहा एडवोकेट्स ऑफ एक्टिव मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी व्यू द इकोनॉमी एज inherently unstable and believe that policy can be used to offset this inherent stability. जो एडवोकेट्स हैं, जो फेवर करते हैं इस चीज़ की कि गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर को मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। एंड देयर आर ए ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट और द क्रिटिक्स ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को यूज़ नहीं करना चाहिए टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी बिकॉज इससे नुकसान हो जाता है और देयर आर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर विच शुड वर्क एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो दिस वाज द फर्स्ट डिबेट जिसकी हमने बात की। ये डिबेट इकोनॉमी में चलती रहती है, जिस कंट्री की भी आप बात करेंगे ये डिबेट रहती है। कुछ इकोनॉमिस्ट कहेंगे कि मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए और कुछ ये कहते हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी जो डिबेट हमने बात की कि वेदर द मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड बाय रूल और लॉ और इट शुड बी द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने इन डिटेल हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए जिससे हमें पता चला कि मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी यूज्ड बाय लॉ, और कुछ ऐसे पॉइंट्स की भी हमने बात की, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट की भी बात की जो ये कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी शुड बी यूज्ड it should be on the discretion of the policy maker, it should be on the discretion of the monetary State Bank of Pakistan or the Federal Bank of any country to use, to correct or to stabilize the economy. So this was the second debate जिसकी हमने बात की. Then we discuss the third debate which remains in the country or in the economy between the economists, और वो ये थी कि should the central bank aim for zero inflation or not. तो इसकी फेवर में भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए और इसके अगेंस्ट में भी हमने पॉइंट डिस्कस किए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक को ये एम करना चाहिए, जीरो इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ नहीं है, इसकी हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है सोसाइटी को। बट अगेन वी हैव सीन सम पॉइंट्स और सम पॉइंट ऑफ व्यू दैट वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन, जो जीरो इन्फ्लेशन है, इज़ अनअटेनेबल और सेंट्रल बैंक को ये एम नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी में रहता है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इसको जीरो कर भी लेते हैं तो लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारी कॉस्ट है, नुकसानात हैं जो सोसाइटी को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये तीसरी डिबेट है अबाउट जीरो इन्फ्लेशन के सेंट्रल बैंक को एम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिबेट भी पॉलिसी मेकर्स के दरमियान, इकोनॉमिस्ट के दरमियान रहती है, चलती रहती है। उसके बाद हमने चौथी डिबेट की बात की जो कि रहती है इकोनॉमी में बिटवीन द पॉलिसी मेकर, एंड दैट वाज रिगार्डिंग दैट वेदर the policy maker should use fiscal policy to reduce burden, to reduce budget deficit and reduce debt from the economy. तो उसमें भी कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि फिस्कल पॉलिसी को यूज़ करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए। And the last policy which we talked about is that whether
the government should reform tax laws to encourage savings or not. So we have seen that there are arguments in favor of this policy that government should reform taxes to encourage savings, and we have also seen some points in against that the government should not reform taxes to encourage saving in the country or in the economy. So this is all about today's lecture. आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे. I hope you have learned something about. So this was basically the overall macroeconomics में जो debates चलती रहती हैं, क्योंकि we are going to finish the second part of our course which is about the macroeconomics today, and आज के बाद जो हम lectures करेंगे इंशाल्लाह 3-4 lecture करेंगे वो that would be particularly about the Pakistan economy पे बात करेंगे. तो आज हमने second part जो course का उसका ख़त्म किया है, that was the macroeconomics part, और I have tried to summarize the debates which remains between the economists about the macroeconomic policies in the country, और हमने 5 debates की बात की, and I hope when you go through this from the book you can understand it properly. So we'll finish our lecture today. Till the next time, till the next lecture, Allah Hafiz.